Good morning, everyone. I have discussed about important feature of Design Act 2000 and a few landmark judgment of डिज़ाइन एक्ट्स, इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। Absolute novelty is the absence of prior publication of the same design in any other article. Section 4A, B and C. The proprietor can also apply for the copyright in the design for the period of 10 years from the date of registration, and for avoiding confusion, as many products can be registered for copyright and also for design, but remedies cannot be sought in both the as individual. पूर्ण नवीनता किसी अन्य लेख में उसी डिजाइन के पूर्व प्रकाशन की अनुपस्थिति है। यह सेक्शन 4A-B-C में बताया गया है। मालिक पंजीकरण की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए डिजाइन में कॉपीराइट के लिए भी आवेदन कर सकता है, और भ्रम से बचने के लिए कॉपीराइट के लिए और डिजाइन के लिए भी कई उत्पादों को पंजीकृत किया जा सकता है, लेकिन दोनों में व्यक्तिगत रूप से उपचार नहीं मांगा जा सकता। ये सेक्शन 11 में बताया गया है। When design is registered, the registered proprietor of the design shall, subject to the provisions of this act, have copyright in the design during 10 years from the date of registration. If before the expiration of the said 10-year, application for the extension of the period of copyrights is made to the controller in the prescribed manner. The controller shall, on payment of the prescribed fee, extend the period of copyright for a second period of 5 years from the expiration of the original period of 10 years. जब कोई डिजाइन पंजीकृत होता है तो डिजाइन के पंजीकृत मालिक को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण की तारीख से 10 वर्षों के दौरान डिजाइन में कॉपीराइट होगा। यदि उक्त 10 वर्षों की समाप्ति से पहले कॉपीराइट
की अवधि के विस्तार के लिए आवेदक नियंत्रक को निर्धारित तरीके से किया जाता है। तो नियंत्रक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर कॉपीराइट की अवधि को दूसरी अवधि के लिए बढ़ा देगा, जो 10 वर्ष की मूल अवधि की समाप्ति से 5 वर्ष का होता है। The Act provides for the jurisdiction of High Court to entertain the transferred case from district court, provided the person is challenging the validity of any registration, according to Section 36 of Design Act. अधिनियम उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को जिला अदालत से स्थानांतरित मामलों पर विचार करने के लिए प्रदान करता है, बशर्ते व्यक्ति किसी भी पंजीकरण की वैधता को चुनौती दे रहा। ये डिजाइन एक्ट के सेक्शन 36 में बताया गया। दिस एक्ट prohibits and punishes imprisonment of registered layout design with imprisonment of up to 3 years or fine of rupees 50,000 approximately to maximum of rupees 10 lakh approximately, according to Section 22(2) of Design Act 2000. यह अधिनियम पंजीकृत लेआउट डिजाइन के उल्लंघन को प्रतिबंधित करता है और 3 साल तक की कैद या 50,000 रुपये से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित करता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22(2) ऑफ द एक्ट। According to section 21 of this act this act provides for a system of anyone can have a certified copy of the registered design to inspect it for anticipating of novelty. After its publication, whenever a license is brought within the domain of public record, डिजाइन एक्ट की धारा 21 बताती है कि इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब भी कोई लाइसेंस सार्वजनिक रिकॉर्ड के क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके प्रकाशन के बाद नवीनता की प्रत्याशा के लिए इसका निरीक्षण करने के लिए पंजीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति किसी के पास भी हो सकती है। Chapter 7 of the Design Act said that this act also provides for the delegation of power of controller and the duty of the examiner. अध्याय 7 कहता है कि यह अधिनियम नियंत्रक की शक्तियों के प्रत्यायोजन के और परीक्षक के कर्तव्यों का भी प्रावधान
करता है। ये चैप्टर 7 में बताया गया। इट आल्सो प्रोवाइड restriction to avoid anti-competitive parties in the market. यह बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं से बचने के लिए भी प्रतिबंध का प्रावधान करता है। A design has to satisfy certain prerequisites for getting registered under the Design Act 2000. As per Section 4 of the Design Act 2000, the design is lack novelty, cannot be registered. At the same time, as per Section 16 of the Design Act 2000, a mere disclosure of design shall not be deemed to be the publication of design if the purpose of the design is disclosed in good faith to a person who has breached the good faith trustworthily on him, and as per Section 21 of the Indian Design Act 2000. The disclosure of designs for the purpose of exhibition cannot invalidate or prevent it from registration. डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकृत होने के लिए एक डिजाइन को कुछ पूर्वापेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 4 के अनुसार डिजाइन में नवीनता की कमी होने पर पंजीकृत नहीं किया जा सकता। साथ ही डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 16 के अनुसार डिजाइन के एकमात्र प्रकटीकरण को डिजाइन का प्रकाशक नहीं माना जाएगा। यदि डिजाइन का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक प्रकट किया गया है जिसने भरोसेमंद सद्भाव का उल्लंघन किया है, वो भारतीय डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 21 के अनुसार प्रदर्शनी के उद्देश्य से डिजाइनों का प्रकटीकरण इसे अमान्य या पंजीकरण से रोकना नहीं हो सकता या रोका नहीं जा सकता। The design must be original, and for the purpose of originality, it is defined under Section 2G, which states original means originating from the author of such design, and includes the cases which the old in themselves yet are new in their applications. As per the case of Hello Mineral Water Private Limited Company versus Thermo King, California, Pure. Hello Mineral Water Private Limited Company versus Thermo King, California.
It was held at mayorship and forum is not sufficient to prove novelty. The court observed that novelty also involved the presence of some new element of innovation position of an old element if it is in combination and which is different from any found in any prior structure. According to, as per the case of Hello Mineral Water Private Limited Company versus Thermo King, California. डिजाइन मूल होना चाहिए, डिजाइन मूल होना चाहिए और मौलिकता के उद्देश्य के लिए इसे धारा 2G के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मूल का अर्थ है इस तरह के डिजाइन के लेखन से उत्पन्न, और इसमें वे मामले शामिल हैं जो अपने आप में पुराने हैं फिर भी उनके आवेदन में नए हैं। ऐसा हेलो मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड बनाम थर्मो किंग कैलिफोर्निया प्योर के मामले में यह माना गया था कि नवीनता साबित करने के लिए केवल आकार और रूप पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने पाया कि नवीनता में कुछ नए तत्व की उपस्थिति या किसी पुराने तत्व की नवीन स्थिति भी शामिल है। यदि यह संयोजन में है तो जो किसी भी पूर्व संरचना में पाई गई किसी भी चीज से अलग है, ये इस केस में बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, डिजाइन मस्ट हैव नॉट पब्लिश्ड anywhere and there should not be any tangible copy available already in the market. If the registration of design is sold in digital format, at the same time secret and private use of any design will not amount to the publication, as it is only for experimental purpose. डिजाइन कभी भी प्रकाशित नहीं होना चाहिए और डिजिटल प्रारूप में डिजाइन का पंजीकरण कम होने पर बाजार में पहले से ही कोई मूर्त प्रति उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी भी डिजाइन के गुप्त और निजी उपयोग को प्रकाशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह केवल प्रयोगात्मक उद्देश्य के लिए। The court in the case of Kemp and Company versus Prima Plastics Limited observed that the discussion of design by the proprietor to any third person cannot be claimed as publication, as the disclosure was in good faith and in conformation to Section 16 of Design Act 2000. कोर्ट ने कैंप एंड कंपनी बनाम प्राइमा प्लास्टिक्स लिमिटेड के मामले में कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति को मालिक द्वारा डिजाइन की चर्चा को प्रकाशन के रूप में साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकटीकरण सद्भावना और अनुरूपता में था।
ये डिजाइन एक्ट 2000 की धारा 16 में बताया गया। There are few items are cannot be registered as a design under the Design Act 2000. Items which cannot be registered as a design under the Design Act 2005: sign, emblem of flags of any country, size of any article if it is changed, structures in buildings, trademarks, any principle of inventions, workshop improvement of components of a already existing assembly, the part of any article which are not manufactured and sold separately can be registered as a design. वे आइटम जिन्हें डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत डिजाइन के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, संकेत, साइन, किसी भी देश के झंडे का प्रतीक, किसी भी वस्तु का आकार यदि वह बदल जाता है, इमारतों में संरचनाएं, ट्रेडमार्क्स, आविष्कारों का कोई सिद्धांत, पहले से मौजूद असेंबली के घटकों के कार्यशाला सुधार, किसी भी लेख के हिस्से जो अलग से निर्मित और बेचे नहीं जाते हैं, एक डिजाइन के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स वो जो बताए थे, इनको डिजाइन के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट फीचर आता है का इंफ्रिंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंफ्रिंजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन का उल्लंघन। In the case of Disney Enterprises, Inc. versus Prime Houseware Limited, Mumbai-based company known as Time Houseware used to manufacture characters like Donald Duck and Mickey Mouse, which resulted in suit being filed by Disney Enterprises for the infringement of international registered design. This was the case where international registration of industrial design became a matter of concern in the court of law. It was held by the court that the plaintiff trademarks is not protected under Indian law, but however, the court passed an order for delivering all the infringing material to the petitioner company and ruled that it should not be used further.
डिज्नी एंटरप्राइजेज इंक बनाम प्राइम हाउसवेयर लिमिटेड के मामले में टाइम हाउसवेयर के रूप में जानी जाने वाली मुंबई स्थित कंपनी डोनाल्ड डक और मिक्की माउस जैसे पात्रों का निर्माण करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप डिज्नी एंटरप्राइजेज द्वारा उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत डिजाइन का यह मामला था औद्योगिक डिजाइन का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण कानून की अदालत में चिंता का विषय बन गया था। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि वादी का ट्रेडमार्क भारतीय कानून के तहत संरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायालय ने याचिकाकर्ता कंपनी को सभी प्रभावशाली सामग्री पहुंचाने का आदेश पारित किया और फैसला सुनाया कि इसका आगे उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, पंजीकृत डिजाइनों की चोरी। As per Section 22 of the Design Act 2000, any obvious fraudulent imitation of a registered design without the proprietor's consent is considered unlawful. This section also prohibited such closely resembling design. It provides for a compensation which shall not exceed rupees 50,000 in such case of infringement. पंजीकृत डिजाइन की चोरी के अंतर्गत डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 22 के अनुसार संबंधित स्वामियों, जो स्वामी होते हैं, संबंधित स्वामियों के बिना पंजीकृत डिजाइन की चोरी या पंजीकृत डिजाइन की कोई भी स्पष्ट कपटपूर्वक नकल गैर कानूनी मानी जाती है। यह धारा इस तरह के बारीकी से मिलते जुलते डिजाइन को भी प्रतिबंधित करती है। यह एक मुआवजे का प्रावधान करता है जो उल्लंघन के ऐसे मामले में 50,000 रुपये तक का होगा, इससे अधिक नहीं होगा। In case of Bharat Gas Tube Limited versus Gopal Glass Works Limited, said that design was registered by the respondent company in collaboration with Germany company. The appellant started using the design for their marketing, which resulted in an infringement suit filed by the respondents, who moved to the court. The appellants contended that the respondent design were not novel as the German company has already been using it since 1992 and it was already published
in United Kingdom Patent Office, and it has lost its originality, rejecting all such of the arguments of the appellants. The High Court on its appeal restored the designs to the respondents, which was later upheld by the Supreme Court of India. भारत गिलास ट्यूब लिमिटेड बनाम गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड के मामले में प्रतिवादी कंपनी द्वारा जनमन कंपनी के सहयोग से डिजाइन पंजीकृत किया गया था। अपीलकर्ताओं ने अपने विपणन के लिए डिजाइन का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादियों द्वारा उल्लंघन का मुकदमा दायर किया गया, जो अदालत में चले गए। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी का डिजाइन उपन्यास नहीं था, क्योंकि जर्मन कंपनी 1992 से पहले से ही इसका उपयोग कर रही थी और यह यूनाइटेड किंगडम पेटेंट कार्यालय में पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी और इसने अपनी मौलिकता खो दी थी। अपीलकर्ता के ऐसे सभी तर्कों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने अपनी अपील पर प्रतिवादियों के लिए डिजाइन को बहाल कर दिया, जिसे बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एज इट इज हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। चैप्टर 2 प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन इन इंडिया, for which an application of registration shall be made in the patent office to the controller into the prescribed form along with the prescribed fee. The controller, after the receiving of application under this act, can verify if it is novel or original, if the design and has not previously published anywhere and not against public policy or morality, can register it. As per section 5 of the Design Act 2000, the application under the action to filled in the patent office and the design should be registered in a specific class, not more than one class. The controller, if rejected any design and have not registered it, the person aggrieved may file an appeal before the High Court. एक डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान चैप्टर 2 अध्याय 2 में भारत में डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रदान किया गया है। जिसके लिए पेटेंट कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में नियंत्रक को पंजीकरण का आवेदन किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद नियंत्रक यह सत्यापित करता है कि यह उपन्यास है या मूल यदि डिजाइन और पहले कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ है और सार्वजनिक नीति या नैतिकता के खिलाफ नहीं है।
तो इसे पंजीकृत कर सकते हैं। डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 5 के अनुसार कार्रवाई के तहत आवेदन पेटेंट कार्यालय में दायर किया जाना चाहिए और डिजाइन एक विशिष्ट वर्ग में पंजीकृत होना चाहिए जो एक वर्ग से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि नियंत्रक ने किसी भी डिजाइन को खारिज कर दिया है और इसे पंजीकृत नहीं किया है तो पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आता है हु आर एंटाइटल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर डिजाइन एक्ट 2000। डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकरण के लिए कौन पात्र है? एज पर द डिजाइन एक्ट 2000, a proprietor whose design has fulfilled all the prerequisites for the susceptibility of providing registration can be entitled of registration for the purpose of the same as per section 2J. A proprietor includes the author of the design or one who has acquired design for valid consideration or a person to whom the design is developed from the title holder. डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार एक मालिक जिसका डिजाइन पंजीकरण प्रदान करने की संवेदनशीलता के लिए भी आवश्यक शर्तें पूरी करता है, पंजीकरण का हकदार हो सकता है। धारा 2J के अनुसार एक मालिक में डिजाइन के लेखक या जिसने वैध विचार के लिए डिजाइन हासिल किया है या एक व्यक्ति जिसे डिजाइन शीर्षक धारक से विकसित किया गया है वो इसमें शामिल होता है। लास्ट फीचर आता है इसका द इंटरफेस ऑफ डिजाइन विद कॉपीराइट। कॉपीराइट के साथ डिजाइन का इंटरफेस। द कॉपीराइट एंड डिजाइन आर एक्सक्लूसिव फॉर लीगल पर्पज इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 15(2). As per the said section, a copyright in any design which is capable of being registered, if not registered, shall case if any other article is registered with design, and if more than 50 times the designed article has been produced by the owner of the copyright. In the case of Metal Incorporation versus Jayant Agarwal, the Metal lost its copyright in design which could have been registered if it is not registered and has already produced the article for more than 50 times. In an infringement suit, Metal could not restore its copyright for its Scrabble board. कॉपीराइट के साथ डिजाइन का इंटरफेस। कॉपीराइट और डिजाइन धारा 15(2) के अनुसार कानूनी दृष्टियों के लिए अनन्य है। उक्त धारा के अनुसार किसी भी डिजाइन में एक कॉपीराइट जो पंजीकृत होने में सक्षम है, यदि पंजीकृत नहीं है तो वह समाप्त हो जाएगा, और यदि कोई अन्य लेख डिजाइन के साथ पंजीकृत है और यदि कॉपीराइट के मालिक द्वारा डिजाइन किए गए लेख का 50 गुना से अधिक उत्पादन किया गया है। मेटल निगमन बनाम जयंत अग्रवाल के मामले में मेटल ने
इसे डिजाइन में कॉपीराइट खो दिया है, जो पंजीकृत नहीं होने पर पंजीकृत हो सकता था, और पहले से ही 50 से अधिक बार लेख का उत्पादन कर चुका था। उल्लंघन के मुकदमे में धातु और स्क्रैबल बोर्ड के कॉपीराइट को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता या कर सकता। Few landmark judgment relating to Design Act 2000, like that Microfiber Nigam बनाम गिरी एंड कंपनी एंड ANR. According to this case, the Delhi High Court suggested a distinction between copyright and design, and it observed that a copyright protection ipso facto will not merit a design, and a design registration is concerned with the class of goods. It also suggested the view of copyrights as a work of art and design as a work of commerce. If the work of art is applied commercially due to its industrial utility, it cases for the protection of copyright and only entitled to the protection of design. माइक्रोफाइबर निगमन बनाम गिरी एंड कंपनी एंड ANR में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट और डिजाइन के बीच में एक अंतर का सुझाव दिया और यह देखा कि एक कॉपीराइट सुरक्षा वास्तव में एक डिजाइन के योग्य नहीं होगी और एक डिजाइन पंजीकरण माल के वर्ग से संबंधित है। इसने कॉपीराइट को कला के काम के रूप में और डिजाइन को वाणिज्य के काम के रूप में देखने का भी सुझाव दिया। यदि कला का काम इसकी औद्योगिक उपयोगिता के कारण व्यावसायिक रूप से लागू किया जाता है तो यह कॉपीराइट के संरक्षण के लिए समाप्त हो जाता है और केवल डिजाइन के संरक्षण का हकदार होता है। रैकेट बैंकस्टर केस फेमस केस है, रैकेट बैंकस्टर केस। In this case, it was decided that for the purpose of evolution under section 4B, the prior disclosure also include the prior registration made in foreign countries such as United Kingdom, United States of America and Australia. This decision was upheld by the division bench. In the twofold conclusion, the division bench observed that if an application is made for registering a design in India within 6 months after the application was made in abroad for the registration of such design, if no such applications is made within 6 months, the availability of the design which is registered abroad in the public domain will result in design not novel and to be considered as under public domain of section 44(2). Read with section 4B. The prior judgment of Gopal Glass Works and Dabur was also taken into consideration.
रैकेट बैक्स्टर केस के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि धारा 4B के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से पूर्व प्रकटीकरण के यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसी विदेशी देशों में किए गए पूर्व पंजीकरण भी शामिल है। खंडपीठ ने इस फैसले को बरकरार रखा और दो तरफा निष्कर्ष में खंडपीठ ने कहा कि यदि इस तरह के डिजाइन के पंजीकरण के लिए विदेश में आवेदन किए जाने के बाद 6 महीने के भीतर भारत में भी एक डिजाइन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, यदि 6 महीने के भीतर ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो डिजाइन की उपलब्धता जो सार्वजनिक डोमेन में विदेश में पंजीकृत है उसके परिणाम स्वरूप डिजाइन नया नहीं होगा। और धारा 4B के साथ सह-पठित धारा 44(2) के सार्वजनिक डोमेन के तहत माना जाएगा। गोपाल ग्लास वर्क्स और डाबर के पूर्व निर्णयों में भी इसको ध्यान में रखा गया। एक लास्ट केस और बताता हूं, एमएस वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस एमएस वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एमएस वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस एमएस वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। In this case, the Whirlpool would have got 2 designs registered. Videocon also got a design registered which covers the same feature of shapes and configuration, and that was evident at its first look to be its replication. The Videocon contended that it has already got the design registered and therefore it is not liable for infringement or passing off. The court rejected the contention of the Videocon and held that there are similarities between the plaintiff and the defendant, and therefore Videocon was held liable for the infringement and for the passing of plaintiff design. MS Whirlpool of India Limited बनाम मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में वर्लपूल ने 2 डिजाइन पंजीकृत करवाए थे। वीडियोकॉन ने एक डिजाइन भी पंजीकृत करवाया था जिसमें आकार और विन्यास की समान विशेषताओं को शामिल किया गया है और यह इसकी प्रतिकृति होने के पहले रूप में स्पष्ट था। वीडियोकॉन ने तर्क दिया कि उसने पहले ही डिजाइन को पंजीकृत करा लिया है और इसलिए वह उल्लंघन या पारित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कोर्ट ने वीडियोकॉन की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि वादी और प्रतिवादी के बीच समानताएं हैं और इसलिए वीडियोकॉन को उल्लंघन के लिए और वादी के डिजाइन के पारित होने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। अभी 5 मिनट। तो आज हमने साइलेंट फीचर ऑफ डिजाइन एक्ट 2000 और कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पढ़ा जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है बेट। तो कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, देखते हैं आईपीआर में न्यू टॉपिक क्या भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके।